BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. شام کے شہر حلب پر اسد حکومت کی بمباری اور مخالفین کے جاری حملے، سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی. اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی پر عمل درآمد کی اپیل. بھارت کے شہر ممبئی میں حاجی علی کی درگاہ کے تمام حصوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خواتین کا احتجاج. کیا ضد ہے کہ اندر جاؤں گی، ہاتھ لگاؤں گی، چادر اٹھا، کون سا طریقہ ہو گیا بھائی؟ سب کا دھرم کا کچھ نہ کچھ نیم ہوتے ہیں، کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں. اور پاکستان میں برفانی چیتے کے تحفظ کی کوششوں پر عالمی ایوارڈ جیتنے والے ڈاکٹر محمد علی نواز سے بھی آپ کو ملوائیں گے. شام کی فوج کا کہنا ہے کہ آج رات دمشق اور لتاکیہ صوبے میں فائر بندی ہوگی، لیکن اس میں حلب کا کوئی ذکر نہیں، جہاں حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات میں بے حد اضافہ ہوا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومت کے زیر کنٹرول علاقے میں باغیوں کی ایک مسجد پر گولہ باری سے کئی افراد ہلاک ہوئے. حلب میں حالیہ واقعات میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. این پینل کی رپورٹ حسین عسکری پیش کر رہے ہیں. یہ ہیں شام میں نام نہاد امن کے حالات. امریکہ، روس اور دنیا اسے جنگ بندی بتا رہے ہیں، لیکن کوئی یہاں کے بچوں سے پوچھے. اس کمزور امن معاہدے کے 2 مہینے بعد یہ ہیں مناظر شام کے سب سے بڑے شہر کے. امن معاہدہ ڈھیر ہو گیا ہے. شہر کے بچ جانے والے چند ہسپتالوں میں سے ایک پر حملہ ہوا. 2 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. ڈاکٹر، نرسیں، مریض اور آس پاس کے رہائشی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے. لوگوں نے مدد کے لیے پکارا، لیکن حلب کے لوگوں کی آواز دھماکوں میں دب کر رہ گئی. یہ عالمی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ہسپتال تھا. صرف اسی سال ان کے کسی ہسپتال پر یہ 7واں حملہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خواتین بچوں کی پیدائش کے لیے جاتی ہیں، وہ جگہ جہاں بچوں کا خصوصی علاج ہوتا ہے، اور یہ اب ملبے کا ڈیر ہے. اب ہمیں کوئی دوسری مناسب جگہ تلاش کرنی ہوگی، اور ہمیں نہیں پتا کہ آیا ایسی کوئی جگہ ہے بھی. گزشتہ چند روز میں ہر 25 منٹ میں ایک شامی شہری ہلاک ہو رہا ہے. حکومت اور اس کے اتحادیوں پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. باقی جنگجوؤں پر بھی یہی الزام ہے. حلب شدید متاثر ہوا ہے. BBC نے شہر میں ایک کارکن سے بات کی. حلب کے شہری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بشار الاسد جیسے اور روسی قصائیوں کو انہیں ہلاک کرنے سے روکیں. امریکہ اور دوسرے ممالک بالکل خاموش ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا. لیکن امریکہ کی جانب سے بیان آیا، اور وہ بھی ایسا واضح جو کہ اس کی شام سے متعلق پالیسی میں کم ہی نظر آتا ہے. یہ حکمت عملی نفرت انگیز اور غیر اخلاقی ہے، لیکن یہ معمول ہے. اسد حکومت کی جانب سے ہم کچھ عرصے سے ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے سے ہی کمزور جنگ بندی کو مزید نقصان پہنچا ہے. لیکن اس جنگ کو روکنے کے لیے الفاظ کافی نہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں امن کا معاہدہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پھر انسانی جانوں کا ضیاع، اور اس کے ساتھ ہی 5 برس سے جاری اس جنگ کے خاتمے کی امید بھی دم توڑ رہی ہے. این پینل کی رپورٹ. حلب کی صورتحال پر BBC کے سوشل میڈیا کے صفحات پر بھی لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے. وکٹر اوکائبو کہتے ہیں امریکی، برطانوی اور روسی لیڈروں کو شرم سے اپنے منہ چھپا لینے چاہیے. ان کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہوگی. روزاتا مسارہ نے کہا کہ ہسپتال، اسکول اور ایسی جگہوں پر تو جنگوں میں بھی حملے نہیں ہوتے تھے. کیا جنگی اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں؟ میر اقرا سری نگر سے کہا کہ جلد ہی کسی بھی شامی کا نام و نشان نہیں ہوگا. فضائی حملوں کا شکریہ.
अफ्रीका में हर साल हाथी दांत के हसूल के लिए 30 से 40 हज़ार हाथियों को मार दिया जाता है। महज तंजानिया में गुज़िश्ता 5 साल में हाथियों की 65% आबादी शिकारियों की भेंट चढ़ गई। हाथियों के शिकार को रोकने के लिए कीनिया के सरबराही में अफ्रीका में ममालिक एक कॉन्फ्रेंस का भी आज से आगाज़ हुआ है। एलिस्टर लीथहेड की रिपोर्ट आदिल शाहज़ेब पेश कर रहे हैं। इन हाथियों का शिकार अगर इतनी तेजी से होता रहा तो इनकी नस्ल का खात्मा होने में देर नहीं लगेगी। अफ्रीका भर में हाथी दांत के हुसूल के लिए हाथियों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। इस कमरे में पड़े हाथी दांतों के लिए कीनिया समेत अफ्रीका में हजारों हाथियों का शिकार किया गया। हाथी दांतों की अरबों डॉलर्स की गैर कानूनी तिजारत दुनिया भर में फैली हुई है। हमें हाथियों का शिकार करने वाले कुछ लोगों तक रसाई मिली। वो हमें शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर यहाँ लाए। हम बड़े से बड़े हाथी का शिकार करते हैं। ये जहर काफी तेज होता है। हमें उनके जिस्म के नरम हिस्से को निशाना बनाना होता है। इनमें से मास्टर कहलाने वाला एक शख्स हाथी दांतों को आगे बेचता है। हम चीनियों को असखुद नहीं बल्कि मुकामी ब्रोकर्स के जरिए माल बेचते हैं, जो कि हमसे तो $35 फी किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन आगे काफ़ी महंगा बेचते हैं। इनका कहना है कि ये काम हुकाम की मिली भगत से ही करते हैं। कीनिया हाथियों का शिकार कम करने में तो कामयाब रहा है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन ही लगता है। एयरपोर्ट्स पर हाथी दांतों की स्मगलिंग रोकने के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इस गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो फिर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस अच्छी खबर का जिक्र भी बजा कि शुमाली पाकिस्तान के बर्फ़पोश हिमालयाई पहाड़ों में बर्फ़ानी चीतों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के इतराफ़ में क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज़ को इस साल का व्हाइटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के बर्फ़पोश पहाड़ी सिलसिलों में अब इन चीतों की तादाद महज 200 है। डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज़ कल BBC तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे पूछा कि बर्फ़ानी चीतों के जिक्र पर तो साइबेरिया और अलास्का वगैरह का ख्याल आता है, पाकिस्तान में ये बर्फानी चीते कहाँ से निकल आए? बर्फानी जो चीता है ये ख़ास तौर पे हमारे इन ग्रेटर हिमालय की बुलंदी के इलाके में पाया जाता है। अलास्का या उन इलाकों में नहीं है। और इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये 12 ममालिक में बनती है। नेपाल, भूटान, इंडिया के शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, चाइना और जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, ये सिर्फ इन ममालिक में पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं है। वक्त के साथ साथ इन बर्फानी चीतों, तेंदुओं या लेपर्ड की तादाद कम क्यों हो रही है? मुतफर्रिक वजूहात हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में और बरूम एशिया में लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उससे जो इसके कुदरती मस्कन हैं उनके अंदर लोग ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, इसकी हैबिटेट सिकुड़ रही है। लेकिन उसके साथ जो जिस मसले ने सारी सूरत-हाल को ज़्यादा गंभीर किया है वो ये है कि इसका जो कुदरती खुराक है वो वहाँ पे जानवर हैं, जैसे मारखोर है, आइबेक्स है और जो है ना मुख्तलिफ वाइल्ड एंगुलेट्स हैं, उनकी तादाद जब कम हुई है तो ये बर्फानी चीता अब ज़्यादा आके नीचे बकरियों का शिकार करता है और लोगों का ज़्यादा गुसर जो है ना उन इलाकों में बकरियों के ऊपर है। वो हर्डिंग फैमिलीज़ हैं तो उनको नुकसान होता है तो गुस्से में वो जाके फिर चीते को मारते हैं। सरकारी सतह पर इन बर्फानी चीतों की तादाद में कमी पर कोई तशवीश है? इनको बचाने के लिए सरकारी सतह पर कोई कोशिश वगैरह हो रही है? सरकारी सतह पे ये है कि कानूनी तौर पे इसको प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ डिक्लेयर किया गया है कानून नाफिज करने के लिए कि अगर आप इसको शिकार करेंगे तो आपको ये फ़ाइन होगा और प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर किए गए हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी सतह पर क्या कोशिशें हैं? आगही है, उन्हें पता है क्या हो रहा है? मुख्तलिफ़ तंजीमें जो स्नो लेपर्ड से मोहब्बत रखती हैं, उसको बचाना चाहती हैं, वो इन लोगों के साथ मिलकर कोशिश कर रही हैं, जिसमें कम्युनिटी के साथ मीटिंग है, उसमें ये एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है कि जानवर क्यों अहम है उनके इकोसिस्टम के लिए और दूसरा इससे अपने
जो है मवेशी को बचाने के बेहतर तदाबीर क्या हो सकती हैं। और आइए देखें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी गहरी तवज्जो का महवर कौन सी खबरें हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में शामिल है कि एक मुसल्लह शख्स के साथ सिंध असम्बली में दाखिल होने पर एक मारूफ टीवी एंकर गिरफ्तार, जबकि फ़ौज की सकाफती ज़रब अज़्ब के उन्वान से वसअतुल्लाह खान का कॉलम खूब पढ़ा जा रहा है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा भारत में ख़वातीन ने मंदिरों और मज़ारों में घुसने की क्यों उठानी है। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में मिलिएगा एक ऐसे रोबोट से जो समंदर की गहराइयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। भारत में मुंबई की मशहूर दरगाह हाजी अली के बाहर ख़वातीन की तंजीमों ने मुजाहरा किया है। उनका मुतालबा है कि मर्दों की तरह औरतों को भी असल मज़ार तक जाने की इजाज़त दी जाए। मर्द औरत की बराबरी की ये तहरीक हालिया दिनों में बास कदीम हिंदू मंदिरों में ख़वातीन के दाखिले पर आयद पाबंदी के ख़िलाफ़ एहतजाज के साथ शुरू हुई है। दिल्ली से शकील अख्तर। मुंबई की हाजी अली दरगाह के बाहर ख्वातीन का एहतजाज अलामती था, लेकिन पैगाम बहुत वाज़ेह था। एक तो हमें औरतें हैं और हमें रोका जा रहा है, तो हम तो इसकी मुखालिफत करेंगे, हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि हमें लग रहा था पूरे इस्लाम को इन्होंने एक कॉन्जर्वेटिव, एक एक्सट्रीमिस्ट, एक पेट्रियार्कल चेहरा दे दिया। दरगाह के मुंतज़मीन और बाज़ सियासी रहनुमा ख्वातीन के दाखिले की शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। इसको क्या जिद है कि अंदर जाऊंगी, हाथ लगाऊंगी, चद्दर उठा, कौन सा तरीका हो गया भाई? सबका धर्म का कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहती, और उसके ऊपर से महिलाओं का अधिकार, महिलाओं के और भी बहुत सारे अधिकार जिसके ऊपर आप लड़ाई लड़ सकती हो। कब्रिस्तानों और मज़ारों पर ख्वातीन पर पाबंदी को बहुत से स्कॉलर्स ख्वातीन के साथ तफरीक से ताबीर कर रहे हैं। ज़ियारत करने का और मज़ारों पे, क़ब्रों पे जाने का जो मकसद है वो है तक़वा, वो है स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, वो है परहेज़गारी और आखिरत को याद करना, खुदा को याद करना, डे ऑफ जजमेंट को याद करना। और ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं हैं, औरतों के लिए भी हैं। औरतें भी इसका हक़ रखती हैं कि वो तक़वा इख्तियार करें। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब भारत में अपने हुकूक के लिए मुस्लिम ख़वातीन में बेदारी बढ़ रही है, क्योंकि मुस्लिम औरतें इस इनजस्टिस से और इस तरह की एक तरह से हरेसमेंट है ये, और एक तरह से जो एक कंसिस्टेंट डिनायल है औरतों के कुरानी हुकूक का, तो औरतें काफ़ी थक गई हैं, ऊब गई हैं। करीब पूरे मुल्क भर में औरतें खड़ी हो रही हैं। औरतें अपने कुरानी हुकूक मांग रही हैं, औरतें अपने डेमोक्रेटिक राइट्स भी मांग रही हैं। भारत की मजहबी और सकाफती ज़िंदगी में मज़ारों का बहुत अहम किरदार रहा है। स्कॉलरों का ख्याल है कि मज़ारात पर ख़वातीन के दाखिले को महदूद करना न सिर्फ सूफियाना तसव्वुरात के मुनाफी है, बल्कि ये इंसानी बराबरी के जमहूरी उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की खरीदारी के मद में दी जाने वाली इमदाद रोक ली है। इस पाबंदी के नतीजे में पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारे खरीदने के लिए $70 करोड़ की रकम खुद अदा करनी होगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने ने इस खबर पर कोई तबसरा करने से गुरेज किया है। नॉर्वे में रेस्क्यू अथॉरिटीज़ का कहना है कि मगरबी शहर बेगन में एक हेलीकॉप्टर के गिरने से कई अफराद हलाक हुए हैं। हेलीकॉप्टर पर 13 अफराद सवार थे जो कि तेल के कुएं से शहर के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। और अब दिल थाम के देखें, चीन में पैराशूटिंग के मुकाबलों का आगाज हो रहा है और इनमें हिस्सा लेने वाले शीशे की बनी हुई इस राह से गुजरकर छलांग लगाएंगे और ये लोग 50 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन तक का फासला तय करेंगे। इंसान को शिकार और उन्हें तकलीफ पहुंचाने वाले रोबोट किस मुल्क की फौज ने डिजाइन किए और जिल्द में चिप
پیوست کر کے کس نے عمر بھر کے لیے آپ کے پسندیدہ کھیلوں تک رسائی دی؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب والی سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں ہفتہ وار بلیٹن کلک میں آج قندیل شام کے ساتھ۔ ڈائسن نے اپنا نیا ہیئر ڈرائر متعارف کرایا ہے جو ان کے مطابق روایتی ہیئر ڈرائر کے مقابلے میں کم شور کرنے والا اور کم نقصان دہ ہے۔ یہ پہلا ایسا ہیئر ڈرائر ہے جو ہینڈل میں ایک چھوٹے سے ایئر پمپ کے ذریعے چلتا ہے اور طاقتور ہواؤں کے بہاؤ سے بالوں کو خشک کرتا ہے۔ لیکن صنعتوں کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کی $437 کی قیمت ایک ہیئر ڈرائر کے لیے بہت مہنگی ہے۔ ارجنٹینا میں ایک فٹ بال کلب شائقین کو شناخت کرنے کا ایک نیا سسٹم تیار کر رہا ہے۔ اس میں ہوگا یہ کہ شائقین کی جلد میں ایک چپ پیوست کر دی جائے گی جس کے ذریعے وہ اسٹیڈیم داخل ہو سکیں گے۔ تھیگرے نامی اس کلب کے مطابق اس طرح کی ٹیکنالوجی والا وہ پہلا ایسا کلب ہے۔ یہ سسٹم اس وقت تجربے کے مرحلے میں ہے۔ کلب کے مالکان کو امید ہے کہ یہ بہت جلد ان سب لوگوں کو دستیاب ہوگا جو عمر بھر کے لیے اپنی ٹیم کے میچز دیکھنے جانا چاہتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا اوشن 1 نامی روبوٹ بحیرہ روم کے تہہ میں ایک بحری جہاز کے ملبے کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ جہاز 17ویں صدی میں ڈوبا تھا۔ یہ ہیومنوئڈ سب باٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چلتا ہے اور اس کے خالق امید کرتے ہیں کہ ایک دن یہ وہاں جا سکے گا جہاں کوئی غوطہ خور نہیں جا سکتا۔ اور چین بھی ایک ایسے روبوٹ کو منظر عام پر لایا ہے جو دیکھنے میں ڈاکٹر ہو والا ڈالک لگتا ہے۔ این باٹ نامی یہ روبوٹ خود چارج ہوتا ہے۔ انسانوں کو شکار اور تکلیف پہنچانے والے اس روبوٹ کو فوج کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ خوفناک درندہ 11 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ ٹیزر گن سے مسلح اس روبوٹ کا ہدف فوحش حرکات کرنے والے شہری ہوں گے۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا شام کے شہر حلب کی صورتحال۔ شام کی فوج نے کہا ہے کہ آج رات دمشق اور لتاکیہ صوبے میں فائر بندی ہوگی، لیکن اس میں حلب کا کوئی ذکر نہیں جہاں حالیہ واقعات میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔